Hello class. So are you already enrolled in the program? Yes. Anthropology optional. So in this session we have around 1 hour of time. 1 घंटे हमारे पास यहाँ पर है before I think there is another class from around 5 p.m. So since most of you were not present in the last class, I'll start from that only. Where we'll be first in 30 minutes we are going to have a quick breakdown of the entire anthropology syllabus. If anybody has any doubt what this subject is all about, since it is quite cliched and we'll be discussing this as we are beginning with the foundation probably in July, all right. So 30 minutes we'll have a detailed analysis of the entire syllabus, paper 1, paper 2, and in the next 20-25 minutes, I'm also going to discuss certain nuances of note making in anthropology. And along with note making, I'm going to share certain insights, keep coming, about what the PYQs has to say. And I've also added this insights document, which will be delivered to you once we start with the batches. So there's a complete list of all the PYQs with the patterns that has come in the past 10 to 11 years, starting from 2013, because that was the year when the pattern of the examination and a lot of other things in and around the optional changed. So you'll be getting this. I'm also telling you one email ID. I'm not sure which mode of communication we'll have. Probably the institute will make a separate group Telegram channel for us. Since most of you are new, can anybody tell me, since I want our classes to be very interactive, what is anthropology? And I'm expecting answers from those who are attending the session for the first time. Some of you, I think 2-3 faces are familiar in the last lecture. So any idea what anthropology is all about? Study and creation of man and its creations to the foremost principles. Sorry, a little louder. Study of man and its creations to the foremost principle that involves all subjects altogether. All right. So basically, what he says that anthropology has a focus in totality in and around men. Definitely, if we go and see the definition of certain 4 founders of anthropology, according to them, anthropology is science of men. There are certain definitions like anthropology is also the gospel of men and his work. We'll be discussing each and every component when we start the first unit in July, that is unit 1.1, that is the introductory unit. So precisely anthropology is the holistic understanding of men, and when we use the term holistic, it means a 360 degree. In the last lecture also, I emphasize upon this fact that why anthropology is a 360 degree study of men. Each and every subject focus upon human and human existence. If you read sociology, sociology is the study of human society. Economics, human economy. जानवरों की इकोनॉमी क्या हो रहा है वो हमारा मतलब नहीं है. History, human past. All right. But anthropology is going to study the history of humans also, what people were doing in the past. Anthropology is interested into human economy also, human political organization also, society, definitely, human society also. There's a branch called socio-cultural anthropology. Language is a very important concern of anthropology. Yes, rightly said. Biology or the physical aspect, this is one of the core branch, one of the 4 important branches of anthropology. So your entire syllabus of UPSC anthropology optional, which is divided into paper 2, is going to cover these aspects of human existence. Now, as I have said that in the first 30 minutes, I'll be briefing you about the entire nature of the syllabus. You must be aware that optional paper, any optional in UPSC, is divided into 2 papers, paper 1 and paper 2. And the nature of paper 1 in most of the cases, it is generic. The general things are covered here. And the things which are specific to the Indian society or the Indian community is basically part of paper 2. Sociology आप लेते हो या philosophy लेते हो, जो Indian thinkers वगैरह हैं, ये सब आप paper 2 के अंदर में पढ़ रहे होते हो. तो paper 2 is mostly Indian oriented, paper 1 is more or less general. So paper 1 का अगर हम break through करें यहाँ पर, क्या क्या चीजें आपके paper 1 के अंदर में आती हैं? It starts with the social and cultural anthropology part. This is the first and foremost area that we are going to discuss.
एंड इवन इन द डिस्कशन ऑफ द सिलेबस ऑल्सो हम यहीं से शुरू करने वाले हैं. सेकेंड, आपका पेपर 1 के अंदर में पूरा का पूरा फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी आ रहा होता है. Thirdly, you have archaeological anthropology, but since archaeology is divided into world archaeology and Indian archaeology, so some of the portion is covered in paper 1, that is general archaeology, the prehistory of the entire world, and some of the portions are basically covered in paper 2. Now, there is a problem with anthropology syllabus, which is common with most of the other optional also, that the structure is not very good. जो यूपीएससी ने सिलेबस यहां पर बना के रखा है वहां पर स्ट्रक्चर थोड़ा सा गड़बड़ है. मैं आपको बताता हूं किस तरीके से. If you see the first 3 units, 1.1 to 1.3, most of the anthropology teachers, faculties believe, and even the toppers who have cracked the examination, that these 3 units are probably the units जो हमें last में पढ़नी चाहिए, because they tell us about the scope of anthropology, the relevance of anthropology, all right, the relationship with other branches, other disciplines, not branches, and the various branches of anthropology. अगर आपका पूरा का पूरा एंथ्रोपोलॉजी खत्म नहीं हुआ है तब तक आप कैसे बेहतर तरीके से बता सकते हो कि एंथ्रोपोलॉजी की रेलिवेंस क्या है या स्कोप क्या है. फिर तो वो रट्टाफिकेशन होगा, सिर्फ आप रट के बता रहे हो. सो दीज आर द 3 यूनिट्स विच वी बेसिकली विल स्टार्ट इन आवर सिलेबस, बट इसका बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको लास्ट में आएगा. तो इसको हम 2 बार पढ़ते हैं. पहले आपको एक इसका ओवरव्यू मिलता है और जब हमारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तो हम एक बार इसको रिविजिट करते हैं, एंड दैट इज अ टाइम व्हेन आई स्पीक लेस एंड यू हैव टू स्पीक मोर, क्योंकि आपको वो सब पूरा समझ में आ गया होता है. ठीक है. So 1.1 to 1.3 we categorize these unit as introductory unit. इसको किसी भी section के अंदर में we are not going to fit them. After these there are series of units, unit 1.4 to unit 1.7. 1.4, 5, 6, 7. These 4 units are basically physical anthropology portion. All right, physical anthropology, the physical dimension of human existence. So what we are going to cover in the physical dimension of human existence, unit 1.4 for example is the evolutionary biology portion. All right, and at times people who are from humanities background ask me a question कि सर क्या यहाँ पर बहुत साइंटिफिक बातें होंगी. नहीं, यूजुअली जो आपने 10th लेवल तक पढ़ा है, 10th 11th तक की ही बायोलॉजी है. 90% बायोलॉजी जो आपकी यहाँ पर है वो 10th लेवल की बायोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर about 3 things. We'll keep Darwin in center. Yes, all the other theories like he's mentioning Lamarck, Comte's work, all right, Buffon's work, and any other theories which has to do with the human existence, even Cuvier's work, all right, they are all categorized as pre-Darwinian theory. So we'll start with the pre-Darwinian theory as the, in most of the cases, the most simplistic definition of anything comes from theology and the idea of religion. कोई भी चीज का origin कहाँ से हुआ तो शुरुआत में क्या बताया जाता था, प्री एनलाइटनमेंट, कि भाई भगवान ने बनाया हुआ है. इवन इन इंडिया इफ समबडी आस्क्स कि वेयर डज द कास्ट सिस्टम हैज इवॉल्वड फ्रॉम, तो दे यूज्ड टू से कि सी दिस इज द ऋग्वेद एंड इन द पुरुष सूक्त 10th मंडला ऑफ द ऋग्वेद देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम दैट ब्राह्मणमस्य मुखो आसीत् बाहो राजनिकृत उरुतदस्य वैश्य पदभयाम शूद्रो अजायत. इस तरीके से वहां पर मेंशन किया गया है. आप अगर पूछते हो किसी से कि ये जो कर्मा का है बेसिस ये कहां से आया, डिवाइनल ओरिजिन. इवोल्यूशन ऑल्सो वॉज द कंसर्न ऑफ द थियोलॉजिस्ट दैट भगवान ने बनाया, और उन्होंने टाइम भी बताया हुआ था वेरी इंटरेस्टिंगली, एंड द टाइम पीरियड वॉज अराउंड 4004 BC. इनफैक्ट उन्होंने टाइम भी बताया हुआ था कि ह्यूमंस जो क्रिएशन है आपका ये 9:30 बजे के आसपास, टाइम भी बता दिया था 9:30 बजे हुआ था. नाउ जैसे जैसे हमारा साइंटिफिक टेम्परमेंट बढ़ा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, डेटिंग के मेथड्स वगैरह आए, तो हमें क्लैरिटी मिलना शुरू हुई. फॉर एग्जांपल टुडे आप में से सारे के सारे लोग ज्यादातर किस डिस्ट्रिक्ट को, किस स्टेट को बिलोंग करते हो? हिमाचल. ऑलराइट. आप कोलकाता से. आप? ऑलराइट. एनीबडी फ्रॉम उत्तर प्रदेश और बिहार? ऑलराइट. सो विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? और लखीमपुर. वेरी गुड. सो somewhat I think I'm not sure about the exact distance, but I probably 600 kilometers from Lakhimpur there is a district called Sant Kabir Nagar, है ना, near Gorakhpur. All right, quite distant. I'm not sure about the exact distance. There is a site in Sant Kabir Nagar called as Lahura Deva,
And there is a important district you must all have heard about it, Prayagraj, or what we call as Allahabad. All right. The constituency of the first Prime Minister of India, Phulpur, नेहरू साहब की भी वही थी, ठीक है ना. तो वहां पर भी एक साइट आपकी है जिसको हम कहते हैं कोलडीवा. इन दोनों साइटों को, लाहुरा देवा विच इज नियर गोरखपुर एंड कोलडीवा विच इज नियर अलाहाबाद इन द बेलन वैली, जब यहां पर डेटिंग की गई तो हमें पता चला कि जो राइस कल्टीवेशन के एविडेंसेस यहां से हमें मिल रहे हैं दैट आर बियॉन्ड 5500 बीसी. तो आप बात कर रहे हो कि इंसान आया, धरती क्रिएट हुई 4004 बीसी के आसपास, उससे पहले तो यहां पर हम राइस का कल्टीवेशन करना शुरू कर चुके थे. ऑलराइट. तो आज के समय में जो हम देखते हैं तो हम स्टोन एज की शुरुआत को रखते हैं अराउंड 3.3 मिलियन ईयर्स अगो. There is a site in Eastern Africa called as Lomkuvi, where the earliest stone tools have been discovered, dating back to around 3.3 million year ago. 33 लाख साल पहले की बात है. तो ये थियोलॉजिकल जो परसेप्शन है सारे के सारे गलत हुए. प्री डार्विनियन में जो कुछ बात की थ्योरी जो थोड़ी सही थ्योरीज थी, उसमें से एक लाइल की थ्योरी है, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म के बारे में आपने सुना होगा, और लेमार्क का जो आइडिया है, ठीक है ना. बट दे ऑल्सो वर नॉट 100% ट्रू. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म्स हैज बीन अकाउंटेड फॉर दीज थ्योरीज. और बाद में आपकी डार्विन की थ्योरी आती है, जो कि प्रोबेबली अभी कुछ सालों पहले एक वोटिंग हुई थी और उसके अंदर में पता चला था कि डार्विन दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट के, अगर आप हाउस होल्ड नेम के बेसिस पे बात करते हो कि रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट कौन है, तो डार्विन का नेम घर घर में लोगों को पता होगा. तो डार्विन का यहाँ पर वर्क आता है. डार्विन का आप सबने सुना होगा द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, है ना. बट दैट इज नॉट समथिंग दैट डार्विन हैज सेड. एक्चुअली ये चीज भी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कही थी जिनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर कहा था, है ना. तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, ऑल्दो द आइडिया ऑफ इवन डार्विन वाज क्वाइट क्लोज टू दिस आइडिया, है ना. ही हैज गिवन द थ्योरी ऑफ व्हाट वी कॉल एज नेचुरल सिलेक्शन. सिंपल सी बात कही थी, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हो, आर्ट्स के हो, किसी भी डोमेन के हो, आपको समझ में आता है वो चीज. इन्होंने कहा था कि भाई ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है ये आपकी एक्सपोनेंशियली बढ़ती है, 1 2 4 8 16 इस तरीके से बढ़ती है. ऑलराइट. लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं ये अर्थमेटिकली बढ़ते हैं, ये उतनी तेजी से मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं. एंड दैट इज वाई पॉपुलेशन का बर्डन जो होगा वो रिसोर्स के ऊपर आएगा. एंड देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन देयर विल बी स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस. सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल होगा. पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, रिसोर्सेज कम है. इस स्ट्रगल के अंदर में जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वो सर्वाइव करेगा. फिटेस्ट से इसका मतलब ये नहीं कि जिसके 6 पैक एब्स होंगे. इट सिंपली मीन्स कि जो उस कंडीशन के अंदर में सबसे बेस्ट एडजस्टमेंट को दिखाता होगा. ऑलराइट. तो यहां पर इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के फिनोमेना की बात की, और ये बहुत सिंपल है. चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे ना हो, आपको बहुत अच्छी तरीके से डार्विन की बात समझ में आएगी. बट डार्विन ऑल्सो हैज सर्टेन प्रॉब्लम्स. ही वॉज एबल टू टेल दैट येस देयर विल बी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, बट फ्रॉम वेयर दीज फिट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिज्म आर कमिंग फ्रॉम, कहां से रहे हैं फिट लोग, ठीक है ना. या फिर मोड ऑफ इनहेरिटेंस कैसा है, जो फिटनेस के जो ट्रेट हैं, आप कह रहे हो अगले जनरेशन में जाएंगे. इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड ट्रेट्स की बात लेमार्क भी कर रहे थे. तो कैसे ये ट्रेट्स जो कि सर्वाइवल को एक तरीके से आपके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये आगे के जनरेशन में किस तरीके से ट्रांसमिट हो रहे हैं, ये बात डार्विन नहीं बता पाए थे. एंड दैट इज व्हाई इनका भी क्रिटिसिज्म हुआ. एंड लेटर सर्टेन पोस्ट डार्विनियन थ्योरीज केम अप, जिसके बेसिकली आप नियो डार्विनिज्म भी कहते हो, और एक कंपोजिट नेम यहां पर आता है जिसको हम सिंथेटिक थ्योरी कहते हैं. इस चीज को आप पढ़ोगे एंड अराउंड 45% ऑफ द क्वेश्चन दैट यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क is only from what is Darwinian theory, what is neo-evolutionary theory, and probably we do not have, I think, a presentation remote, so we have to keep pressing it here. If you see it, ये थोड़ा सा क्योंकि हमने इसको नोट पे खोला हुआ है, that is why it is a little blur. When you will get the soft copy, it will be more clearer. Physical and biological anthropology. All right. So, in the past 10 years, UPSC has asked 4 direct questions from this particular unit 1.4, and 50% of the times those questions are basically either from Darwinian theory or else it is from the post Darwinian theory. और बहुत सिंपल वे में आपको यहाँ पर इन चीजों को लिखना पड़ता है. जैसे आप 10th 11th के स्टैंडर्ड में डार्विनियन थ्योरी को पढ़ते हो, डिटेलिंग उतनी ही है. हाँ, डेफिनेटली इट इज यूपीएससी, so the presentation has to be a little different, and that you will come to know as we move ahead. All right. Next, in the evolutionary biology, we also discuss that the study of physical anthropology or biological anthropology is not as same as the life sciences.
लाइफ साइंसेज में भी आप इवोल्यूशन को पढ़ते हो, बचपन में सबने पढ़ा है बायोलॉजी में, बट दैट इज नॉट सिमिलर एज वी डू इन एंथ्रोपोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल इन लाइफ साइंसेज, या आप में से जो लोग एमएससी जूलॉजी वगैरह करके आए हुए हैं, बीएससी आपने किया होगा, वहां पर आप सिंपल इवोल्यूशन को पढ़ते हो, ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द बायोलॉजिकल टर्म. होमोलॉजी, एनालॉजी, ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन क्या है, एनालॉगस ऑर्गन्स क्या है, क्या एविडेंसेस आपको देखने को मिलते हैं इवोल्यूशन के अलग अलग लेवल पर, ये सारी बातें होती हैं. बट व्हेन यू कम टू यूपीएससी लेवल और एंथ्रोपोलॉजी, इन फैक्ट नॉट यूपीएससी, वी टॉक अबाउट व्हाट a phenomena called as biocultural evolution. Evolution is not solely in terms of biology or morphology, but it is also in terms of culture. Both biology and culture has an interplay. Both influences each other. For example, if I ask you how apes are different from all of us, what is the most striking dissimilarity that we have? Anything else? We are? Homo erectus is basically a species. Erectus is species, but you are very close. I think आप बिल्कुल बिल्कुल, I got it. Yes, so you are talking about erect posture. That is correct. So if you see most of the apes, they are basically quadruped. Quadrupedalism is the mode of locomotion. All right. Or some of the lesser apes like gibbons and siamangs, they also brachiate. आपने कभी जू गए होगे या फिर आपने कभी डॉक्यूमेंट्री देखी होगी नेट जियो वगैरह के, तो बहुत अच्छे से ब्रेकिएट करते हैं, एक डाल को पकड़ के दूसरे के ऊपर वो करते हैं, तो स्विंगिंग तरीके की मूवमेंट होती है, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, ब्रेकिएशन कहते हैं, ब्रेकिएशन कहते हैं. सो द प्राइमरी मोड ऑफ लोकोमोशन ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइमेट इज आर्बोरियल और टेरेस्ट्रियल क्वाड्रापेडलिज्म. इट स्लाइटली डिफर्स, in fact not slightly, extremely different from what we have, and that is called as the bipedal locomotion. Now for this bipedal locomotion to evolve, there were a lot of prerequisites. बहुत सारे changes यहाँ पर जरूरी थे. अब इसकी कई सारी hypotheses भी हैं. What made us probably bipedal in nature? तो यहाँ पर एक जो सबसे पॉपुलर हाइपोथेसिस है, शायद आप में से भी कुछ लोगों ने सुनी होगी, दैट इज कॉल्ड एज सवाना हाइपोथेसिस. सवाना हाइपोथेसिस क्या कहती है कि आज से कई लाख साल पहले अफ्रीका के अंदर में जो फॉरेस्ट लाइक इकोसिस्टम था, ग्रेजुअली इट स्टार्ट टू श्रिंक डाउन एंड इट लार्जली कन्वर्टेड टू द ग्रासलैंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम. सो व्हेन देयर इज लेस नंबर ऑफ ट्रीज, how you are going to swing or how you are going to walk or run on the branches of the trees. So you have to, there is a environmental necessity that you have to come down on the ground. Now when you are on the ground, there is another problem that the grasses are very tall. You are not able to see beyond those grasses. अब क्वेश्चन उठता है कि क्यों देखना है आपको ग्रासेस के पीछे. देयर माइट बी सम हंटर, कोई ऐसे जानवर हो सकता है जो आपको हंट करे, या प्रोबेबली आपको किसी को वहां पर हंट करना हो, या इवन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोविजनिंग एंड कैरिंग बेबीज. So there was a requirement, a necessity that we have to start walking on 2 feet. तो ये रातों रात नहीं हुआ, ग्रेजुअली बहुत सारे चेंजेस थे, बहुत सारा समय लगा हमें टू मेंटेन दिस कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर. और इसके लिए हमारी बॉडी की मॉर्फोलॉजी में बहुत चेंजेस आई. फॉर एग्जांपल देयर इज अ बोन, सबसे बड़ी जो बोन हमारी सब जानते हैं, फीमर बोन. देयर इज अ मसल अटैचमेंट साइट कॉल्ड एज लीनिया एस्पेरा, ठीक है, विच इज क्वाइट पिक्यूलियर फीचर डिजाइन फॉर द इरेक्ट पोस्चर. इवन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया, जो अटेंड किए उनको पता होगा, इन आवर फुट रीजन we have arches, all right, medislateral and dorsoplantar arches. ये क्या करता है, बेसिकली हमें हमारी मूवमेंट को, जो हम दो पैरों पे चलते हैं, हमें बैलेंस प्रोवाइड करता है. इवन हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम, उसको आप देखोगे तो अनलाइक दी एव जहां पर एक सिंगल कर्वेचर आपको ऐसा देखने को मिलता है, हमारे जो स्पाइनल का आप देखोगे वर्टिब्रल कॉलम को, वहां पर क्या है, कर्व इस तरीके से है, एक स्पाइरल आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है ना. अलग अलग वर्टिब्रेट्स इस तरीके से आपकी अरेंज्ड हैं. वो भी क्या करती है, प्रेशर को एब्जॉर्ब करने में और हमें बाइपेडल लोकोमोशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है. तो ये सारे बायोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर में आ रहे हैं. कई सारे टेक्निकल टर्म है जो मैं अभी नहीं लूंगा शुरुआत में, जब हम जाएंगे तो बात करेंगे उसके ऊपर. कई सारी मसल अटैचमेंट साइट है, लॉट ऑफ अदर चेंजेस दैट हैव इनकर्ड, जिसने बेसिकली हमें बाइपेडल बनने के अंदर में हेल्प की. लेकिन बाइपेडल बनने से कई सारे कल्चरल चेंजेस भी आए. बाइपेडलिज्म क्या है, इट इज अ फिजिकल चेंज, यू ऑल एग्री, but it will also influence certain cultural changes. If somebody can remember it from the last lecture, मुझे बताइए क्या cultural change आएगा बाइपेडल होने की वजह से, और अदरवाइज ऑल्सो दूसरे लोग भी बता सकते हैं. बाइपेडल होने से क्या कल्चर का चेंज डेवलप होगा या क्या हुआ होगा हमारी हिस्ट्री में. सबसे पहले जब आप पैरों पे चलने लगे तो एक बायोलॉजी में क्या चेंज आया सबसे पहले, वी कैन वॉक, ठीक है. अनदर थिंग,
आर हैंड्स गॉट फ्री, हमारे हाथ जो है दोनों के दोनों फ्री हो गए। अब इस हाथ के फ्री होने का आपने क्या फायदा उठाया? यू स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग व्हाट इज कॉल्ड एज स्टोन टूल्स। ऑलराइट, सो हिस्ट्री आप पढ़ते हो, आप सब जीएस के अगर लेक्चर शुरू हो गए तो यू बेसिकली गो थ्रू द पेलियोलिथिक टू द नियोलिथिक एंड देन टू द मेटल एजेस। ऑलराइट, ये सारे पीरियड से आप जाते हो, लोअर मिडल अपर पेलोलिथिक, देन आपका मेसोलिथिक है, फिर आपका नियोलिथिक है, एंड देन आपका सीबीआई जो कॉपर ब्रॉन्ज आयरन एज आपको देखने को मिलता है। यस, सो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि स्टोन्स को हमने क्या किया, टूल्स के तौर पर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। ऑलराइट, दूसरा हमने एक स्पेशलिटी पाई कि भाई हमने फायर की डिस्कवरी की। फायर की डिस्कवरी भी पॉसिबल तभी थी जब आप दो स्टोन्स को क्या करो, आपस में स्ट्राइक करो, फ्रिक्शन होगा, वहां पर फायर आएगी, चिंगारी आएगी। शुरुआत में इंसान ने इसको एक्सीडेंटली किया, लोगों का मानना है, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है, बाद में इंसान ने इसको कंट्रोल किया, कंट्रोल फायर करना शुरू किया। तो ये दो इंपॉर्टेंट कल्चरल चेंजेस थे। अब इनसे बायोलॉजिकल चेंज आएंगे, दीज आर कल्चरल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द cultural changes. Now these cultural changes will influence in turn the biological or the physical aspect of human. How? When we discovered fire, yes, you want to say? Yes, definitely. So आपके देखोगे मॉर्फोलॉजी में कई सारे चेंजेस आए। अपोजिबिलिटी ऑफ थंब इज वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जो ग्रिप है, आप देखोगे दूसरे एप्स या जानवरों में पावर ग्रिप होती है, किसी चीज को इस तरीके से पकड़ते हैं, बट हमारे में क्या है, आप जैसे पेन को पकड़ते हो, प्रेसिशन ग्रिप आपको देखने को मिलता है। तो हमारे हैंड की जो मैनुअल डेक्सटेरिटी है, इसको मैनिपुलेट करने का जो हमारी जो एक कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, ये काफी ज्यादा एनहांस आपको देखने को मिला। ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हेन वी स्टार्टेड यूजिंग फायर, वी स्टार्टेड कुकिंग फूड। ठीक है ना, फूड को कुक करके वहां पर कंज्यूम करने लगे। इससे दो चीजें हुई, एक तो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट थी वो मिली, जिसने हमारे ब्रेन के एनलार्जमेंट को बहुत तेज किया। और ये ब्रेन का एनलार्जमेंट इज ऑल्सो अ वेरी यूनिक फीचर दैट मेक्स अस different from rest primates and in fact even our ancestors. If you see the average cranial capacity of the apes, lesser और आप अगर greater apes को मिलाते हो from gibbons to the chimpanzees, average cranial capacity is around 350 cubic centimeter. If you see the cranial capacity of Homo habilis, Homo erectus अभी आप नाम ले रहे थे, तो Homo habilis की जो cranial capacity थी somewhere around 600 cubic centimeters, and then Homo erectus की 900 classically मानी जाती थी। नाउ रिसेंट एविडेंसेस और स्टडीज बता रही हैं कि प्रोबेबली एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी 1100 के आसपास है, बट स्टिल लो। हमारी एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी ऑन द अदर हैंड, होमो सेपियंस सेपियंस 1400 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना, दिस इज द एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी। इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, लाइक वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो ये जो क्रेनियल कैपेसिटी का इंक्रीमेंट है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव जो हमारा डेवलपमेंट है, इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द प्रोटीन दैट वी बेसिकली स्टार्टेड गेटिंग आफ्टर वी स्टार्टेड कुकिंग आवर फूड प्रॉपरली। एक और चीज क्या हुई कि when you were having the raw food, unprocessed food, it was impacting your jaws a lot. There was a huge strain on your jaws, and that is why you'll see certain jaw muscles. जैसे दो मसल्स है हमारी, एक है आपकी मासीटर और दूसरी आपकी टेम्पोरलिस, हमारे बीच में भी है, but it is more developed among the apes and the evidences that we get from the fossil records. Alright, because unprocessed food को वहां पर वो खा रहे होते थे, and even the supporting structures were also massive. jaws को आप देखोगे तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे, protruding थे, सामने की तरफ निकले हुए होते थे. Even the canines were very large. Alright, there used to be a gap between the incisor and the canine. Incisor canine सबको पता है, जो हमारे सामने वाले दांत हैं, the canines जो दांत हैं, ठीक है, इनके बीच में गैप होता था, जिसको अभी हम जाएंगे डिटेल में पढ़ेंगे, कहा जाता है diastema इसको. Alright, the gap between the canines and the incisor. So a lot of morphological changes in the facial arcade started coming up because we were cooking our food now. Vestigial organs, how? Yes, you can also say that, ठीक है, उसको भी आप कह सकते हो, but that is not directly impacting the cultural aspect. तो उसको हम वहां पर अभी एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है ना। इसको भी आप कह सकते हो, अगर आप फिजिकल एट्रीब्यूट की बात कर रहे हो तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं, बट फिर हम उसको कल्चर से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। हम ऐसी क्रोनोलॉजी को लेकर चल रहे हैं जिससे हम वी कैन कनेक्ट फिजिकल कल्चर इस तरीके से। Alright, so all of these things are basically influencing our physique and then thereby our culture. So this is going to be a topic of discussion in the part where we are learning about the evolutionary biology. ऐसा क्वेश्चन सिर्फ एक बार यूपीएससी ने पूछा है about the biocultural aspect of human evolution. ठीक है ना, 2013 में, ठीक है, तो काफी पुराना है फिर तो। The next unit that we have here is quite interesting. अब आपको इंटरेस्टिंग लगती है या नहीं लगती है, that depends from person to person. It is basically unit 1.5 and entirely about primatology. People who are having science background,
जिन्होंने बीएससी वगैरह किया हुआ है उन्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, और ऐसा मत समझिएगा कि किसी ने अगर बीएससी किया है तो उसके लिए ईजी है. एज फार एज आई नो द सिलेबस ऑफ बीएससी in most of the places, what you read in the 6th semester is about vertebrates, invertebrates, immunology, neuroanatomy के बारे में आप पढ़ते हो, ethology, animal behavior पढ़ते हो आप, ecology पढ़ते हो आप, ecology पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है. Primatology is probably not the thing that is taught in most of the regular BSc courses across India. तो यहाँ पर primatology is going to be new for everyone. और हम इसको पढ़ाएंगे भी उसी तरीके से, विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, हम उसी तरीके से इसको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ प्राइमेटोलॉजी? व्हाट बेसिकली इज अ प्राइमेट? प्राइमेट क्या है, किसी को आइडिया है? वो नेक्स्ट यूनिट में आएगा 1.6. प्राइमेट वर्ड व्हाट डज इट मीन, एनीबडी? सी, हम सब ने बचपन में, आई बिलीव 6th-7th में, I've been changing my like board from UP to CBSE to ICSE, तो मुझे exactly नहीं पता कि किस जगह पर कहाँ पर होता है, लेकिन most of the times I think class 7th के आसपास में आप पढ़ते हो 2 kingdom, 3 kingdom, 5 kingdom classification. रॉबर्ट एच विटेकर के बारे में पढ़ते हो, अर्नस्ट हेकल के बारे में पढ़ते हो, आप इन सारे लोग के बारे में पढ़ते हो, ठीक है ना. प्लांटे है, मोनेरा है, प्रोटेस्टा है, एनिमेलिया, फंजाई, ये सबको पढ़ते हो आप. तो जो ये क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं उसमें जब हम बहुत नीचे के लेवल पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी ऑल आर मैमल्स, ऑलराइट, which is our class. We all belong to the class Mammalia. In the class Mammalia, there are multiple orders. These are what? These are taxonomic unit. These are in the classification. These are various taxonomic unit. Taxonomy क्या है? आप इस तरीके से पूरा क्लासिफिकेशन करो 5 किंगडम के अंदर में, तो किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ये सारी चीज आपके अलग अलग टैक्सॉन है, यूनिट है उस क्लासिफिकेशन के. एंड वन ऑफ द यूनिट इज बेसिकली क्लास. So in class Mammalia there are various orders. फॉर एग्जाम्पल ईडेंटाटा, कायरोप्टेरा जिसके अंदर में बैट आते हैं, ठीक है ना, सीनिया, सिटेशिया जिसके अंदर में सी ड्वेलिंग और आपके जो रिवर वाले जो एनिमल्स होते हैं वो आपको आते हुए देखने को मिलेंगे. देन आपके अंगुलाटा जिसमें हूफ्ड एनिमल्स आपके आ जाते हैं, काऊ वगैरह, हॉर्सेस, ये सारे से सारे. देन आपका कार्निवोरा है जिसमें कैट फैमिली, कैट, डॉग्स, ये सारे सारे कार्निवोरस एनिमल्स आते हैं. रोडेंशिया जिसके अंदर में आपके रोडेंट्स आ जाते हैं, ठीक है ना. एंड फाइनली देयर इज दिस group, this order called as primata. तो primate एक order है in the taxonomic classification. Primate is one of the order in class Mammalia. This primate order is divided into 2 subgroups or 2 suborders, which is called as prosimians and anthropoids. We'll discuss about this with a detailed chart. आपको पूरा चार्ट बना करके दिखाएंगे हम, और उसके अंदर आप पढ़ोगे. तो जिसको अभी क्विक रिव्यू में या ओवरव्यू में समझ में नहीं आ रहा है, जो ह्यूमैनिटीज है उन्हें और क्लियरली उस समय समझ में आएगा. तो प्राइमेट के अंदर में देयर आर वेरी क्यूट एनिमल्स लाइक लॉरिस एंड लिमुर्स. आप अगर इनकी इमेजेस को देखोगे इंटरनेट पे, मोस्ट ऑफ यू विल वांट टू एटलीस्ट पेट वन ऑफ देम. एटलीस्ट लॉरिस बहुत ज्यादा क्यूट आपको दिखाई देता है, आप उसको जरूर पेट करना चाहोगे. और दूसरे आपके जो हायर प्राइमेट्स हैं जिसके अंदर में आपके मंकीज आ जाते हैं, मंकीज ऑफ बोथ ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड, ठीक है. और साथ ही में आपके एप्स आते हैं, एप्स बोथ लेसर एप्स एंड द हायर एप्स. In lesser ape, there are only 2 members, gibbons and siamans. In the higher, there are 3 members, in fact 4 members. One is orangutan, then chimpanzee, then third is gorilla, and the fourth is bonobo. Some of the times you will often find question from this topic in your prelims. From which portion? Environment and ecology. For example, orangutan के ऊपर शायद एक क्वेश्चन आया था in 2023 और 24 prelims that ये किस रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है. तो बॉर्नियो सुमात्रा के अंदर में तो आपको बोला था करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो वहां पर भी आपको कभी कभी प्राइमेटोलॉजी जो है वो हेल्प करता है. एंड सम ऑफ दीज एनिमल्स आर आल्सो एंडेंजर्ड, तो इसलिए भी थोड़ा सा ये रेलेवेंस इसकी यहाँ पर रहती है. एंड तीसरा जो यहाँ पर मेंबर है वो पूरा का पूरा हमारा जो ह्यूमन ग्रुप है, जिसके अंदर में हमारे एंसेस्टर्स भी आते हैं, एंड वी आर ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर दिस पर्टिकुलर ग्रुप. ऑलराइट, सो व्हाट इज द आइडिया और द एम ऑफ स्टडिंग प्राइमेटोलॉजी? फर्स्टली वी वांट टू नो द ट्रेंड ऑफ इवोल्यूशन. In the trend of evolution, most of the primates differentiated from our lineage, our group. So what are the similarities and dissimilarities that we have with them? Apes को अगर आप देखो और आप humans को देखो तो आप कैसे differentiate करोगे? बहुत simple चीजें. For example, if you see the dental arcade of the apes, most of the great apes, it is U-shaped. U-shaped है, और वो U-shaped क्यों आ रहा है? Because यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि incisors और canine के बीच में एक gap आपको दिखाई देता है, which is called as the diastema.
if you see the lower primate order, here the dental arcade is slightly V-shaped because they are having muzzle-shaped fish. Snouty face उनका basically होता है, and why that is so? Because greater olfaction is seen amongst them. Olfaction क्या है? Ability to smell. In the trend of evolution, हमारे order की तरफ आते आते जो smell का sense है वो कम हुआ है, because हमें sniff करके अपने food को ढूंढने की जरूरत नहीं है. We prepare our food, we cook our food, all right. Unlike the members of carnivora जिनकी smell बहुत तेज होती है. आप dogs को देखोगे, cats को देखोगे, they are having very strong sense of smell. So in the trend of evolution, we lost our sense of olfaction and what we developed, visual acuity. ठीक है ना? हमारा जो visual field है वो और भी ज्यादा बेहतर आपको होते हुए देखने को मिला. तो यहाँ पर ये muzzle shaped इसीलिए आ रहा है because of the snouty reason जो उनकी nose जिस तरह की आपको देखने को मिल रही है. Humans के बीच में आप देखोगे तो it is more or less parabolic in nature. ठीक है ना? Parabolic in nature है. तो we do understand what are the comparative similarities and dissimilarities among various members of the primates. ठीक है? क्वेश्चन कैसे आते हैं आप देखोगे बड़े टिपिकल होते हैं. एक चीज जो मैं आपको बता रहा था शुरुआत में, दैट वी विल डिस्कस इन द एंड ऑफ द सेशन, दैट एंथ्रोपोलॉजी को एक चीज जो बहुत ज्यादा स्पेशल बनाती है, दैट इज द पीवाईक्यू. द पीवाईक्यू, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड देयर आर 2 to 3 questions from each unit which are getting repeated every now and then. For example, when you will study unit 2.1, there is one question जिसके पीछे UPSC पागल हुआ पड़ा है, and that is cultural relativism. Every second or third year they are asking question from this topic. When you go to unit 2.2, they are mad after what is called as social stratification. Social stratification. Marriage के अंदर, religion के अंदर में there are trends. So PYQ is a very important element of all the optional, but UPSC में आप anthro optional को देखोगे, ऐसा कहा जाता है, and till 2019 it was true that आप PYQ के ऊपर अगर आपकी 100% कमांड है, nobody can take 275 marks out of your hand. आप जितना भी presentation ordinary average करके आओ. From 2019 जब से ये एंथ्रोपोलॉजी आपका थोड़ा सा चैंपियन सब्जेक्ट बनने लगा है, why? Thanks to the ranks that we got in 2017, 2018. In 2017, out of 10, there were 4 ranks जो कि एंथ्रो की थी. और even first rank अनुदीप दुर्शेटी. 2018 it was Akshat Jain, AIR second. Then 2020 again first rank Shubham Kumar. Then 2022 or 23 I think again top 10 में there were 4 ranks from anthropology. And next year also. Yes, I think Uma Harti was also there. ठीक है ना? मयूर हजारिका and वसीम भट्ट. So इनके बारे में बात करेंगे, कुछ के आंसर शीट्स काफी बेहतर हैं. And this will also give you glimpse how you can integrate your core interest area with your optional. For example, वसीम भट्ट, उनको बुक रीडिंग का काफी शौक है. ठीक है ना? सेपियंस करके एक बुक है, आपने सब नाम सुना होगा. बट अपार्ट फ्रॉम सेपियंस ऑल्सो बहुत सारी किताबें, फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन ऑथर कॉल्ड एज जेरेड डायमंड. तो आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू रीड दोज बुक, बट आई एम सेइंग कि अगर आपका इंटरेस्ट एरिया है कि आप पास टाइम के लिए किताबों को पढ़ते हो, यू कैन इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट इन योर ऑप्शनल पेपर. दैट इज व्हाट शुभम कुमार हैज डन. इससे होता क्या है? वी गेट नोवेलिटी. और आपको एक इंपॉर्टेंस क्या है कोचिंग की एंथ्रोपोलॉजी के अंदर में? Before teaching offline here at an academy, for past 3 years I've been teaching in the online mode. उसके पहले I was in offline. So my experience is that कि most of the people, most of the aspirants who are coming to anthropology have an idea कि यहाँ पर कुछ 500-600 पन्ने को पढ़ के, वही 500-600 पन्ने जिसको सारे लोग पढ़ते हैं, हम एंथ्रोपोलॉजी को एक्सेल कर सकते हैं. तो विवेक भस्मे का एक नोट आता है. अपार्ट फ्रॉम दैट अक्षत जैन का डीमिस्टिफाइड करके एक किताब आती है. How they have made this note? They have done the foundation courses wherever they have done it. All right. After doing that foundation courses, उन्होंने कई जगहों पे टेस्ट सीरीज दी, एनरिचमेंट किया, बहुत सारी चीज़ों को किया. And after doing all of these things, उन्होंने इसका जो जिस्ट है सारी चीज़ों को निकाला and अपने नोट्स के साथ में इंटीग्रेट किया. After adding that, he got the structure what was basically constructed as a revision note. As a revision note. And most of the aspirants are using that revision note to complete the foundation. तो उन्होंने जो उतनी मेहनत करके 500-600 पन्ने बनाए, हजारों पन्नों को पढ़ करके, बच्चा उससे करने की कोशिश कर रहा है. तो what you have to do is to not repeat that mistake. You have to be a complete dedication आपको यहाँ पर दिखाना है, मेहनत करनी है. and you have to expect कि आप 150-200 पन्ने पढ़ोगे यहाँ पर.
ठीक है ना, एक साथ नहीं पढ़ोगे, बहुत सारे पन्ने यहाँ पर वैल्यू एडिशन के भी होते हैं. एंड आई टेल यू विच आर द एरियाज जहाँ पर आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन में हम अक्सर इस चीज़ के लिए क्रैश कोर्सेज को निकालते हैं और बच्चे को बताते हैं कि कैसे आप 1,500 पन्ने को फाइनली 350 पन्नों पे ले आते हो, बिकॉज between prelims and mains now you are having hardly 2.5 months gap, so you cannot go through 1,500 pages in between this gap. So you have to make notes in such a way कि आप वहां पर हर मंथ 100-125 पेजेस को एक दिन में 10-15 के आसपास पन्ने को भी पढ़ो तो भी आप आसानी से कवर कर सको मेन से पहले. ठीक है ना, और वो हम करते चलेंगे. इन द क्लासेस विल बी डेडिकेटिंग ऑलमोस्ट आई थिंक 20-25 minutes for the dictation part. I am going to dictate you the notes towards the end of the session after explaining the entire topic, and after that I'll be giving you idea कि आप अपने notes को कैसे answer writing format में बना सकते हो from multiple sources enrichment material that we are going to provide here in the course. ठीक है, तो वो सब बात की बातें, बैच एक बार स्टार्ट होगा तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे. कमिंग बैक टू दिस पोर्शन, ट्राइमेटोलॉजी के बाद आपकी जो अगली यूनिट आती है दैट इज 1.6. Unit 1.6 is about paleontology. Paleontology, here you are basically focusing upon the fossil record. And UPSC is very lenient towards you because UPSC आपसे साफ-साफ कह रहा है कि आपको किस पीरियड के और कौन से फॉसिल्स को यहाँ पर पढ़ना है और कौन से नहीं पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल होमो हेबिलस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल, बट UPSC is not mentioning it in the syllabus. So you'll see in past 10 to 15 years, only 3 to 4 questions have been asked. Some questions from Neanderthals, how Neanderthals got extinct, कैसे मर गए वो लोग, ठीक है, उनका ओरिजिन किस तरीके से आपको होते हुए देखने को मिल रहा है. इंटरब्रीडिंग के ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हुए देखने को मिलेंगे. होमो इरेक्टस के ऊपर क्वेश्चन मिल रहे हैं या फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के ऊपर मिल रहे हैं. ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. दे विल आस्क यू सिंपली व्हाट आर द Australopithecus fossil remains which are discovered from either Eastern Africa or from Southern Africa, and what are the features of these particular fossil remains. Yes. Do they ask question from Narmada Man? Narmada Man is part of paper 2, and Narmada Man का जो antiquity है और जो उसका phylogenetic position है, that is still debated. For example, it was discovered in year 1982, and it is the sole middle Pleistocene fossil that is discovered in the Indian subcontinent. और कोई भी fossil हमारे पास नहीं है. शुरुआत में जब अरुण सोनाकिया साहब ने हथनौरा नाम के विलेज में मध्य प्रदेश में इसको ढूंढा तो ही एसोसिएटेड इट विद द होमो इरेक्टस स्पीशीज, बट लेटर इट वाज फाउंड बाय अदर स्कॉलर्स जब उसको 90s में रीस्टडी किया गया दैट प्रोबेबली इट इज नॉट होमो इरेक्टस. नाउ देयर आर 2 थ्योरीज दैट ईदर इट इज सम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ आर्केइक सेपियंस और होमो हाइडेलबर्गेंसिस. तो अभी उसको इरेक्टस वहां पर नहीं माना जाता है. नर्मदा मैन से बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं लेकिन वो पेपर 2 का टॉपिक है, जब हम उसके ऊपर जाएंगे तो वहां पर बात की जाएगी. यहां पर आप देखोगे जैसा मैंने आपको बताया, लेट अस कम टू द PYQ डॉक्यूमेंट. आई थिंक इंडियन से पहले आपका है फिजिकल. यस, यूनिट 1.6 ऑस्ट्रेलोपिथेकस. देयर आर 3 क्वेश्चंस. इरेक्टस रिलेटेड क्वेश्चंस 4. निएंडरथल्स के ऊपर 2 ही क्वेश्चन आपके आए हुए. मॉडर्न ह्यूमन ओरिजिन और डिस्पर्सल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक बार यहां पर आता हुआ देखने को मिला और बहुत ही सिंपल है. फॉर एग्जांपल यू हैव टू स्टडी 4 फॉसिल्स, 2 फ्रॉम ईस्टर्न अफ्रीका, 2 फ्रॉम सदर्न अफ्रीका. उनके फीचर्स आपको पढ़ने, व्हाट आर द बायोलॉजिकल फीचर्स, एंड यू हैव टू राइट डाउन. वहां पर बहुत ज्यादा एनालिटिकल अप्रोच को भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है. द बेस्ट पार्ट इज द क्वेश्चंस आर मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्टली लोडेड. ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन को लिखने में बहुत आपको मजा आती है. आप जो टेम्पलेट पढ़ करके गए हो, बना करके गए हो, यू आर रिप्रोड्यूसिंग इट ऑन द आंसर शीट एंड यू आर बेसिकली गेटिंग मार्क्स फॉर दैट. आफ्टर 1.6 there is one unit which is actually the most biological unit in the entire syllabus, and if somebody is not having any interest in biology, this is the only unit that can trouble the person. बिल्कुल नफरत है बायोलॉजी से तो ये आपकी यूनिट है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ. We start from the study of what is cell, what are the components of cell, and after that prokaryote, eukaryotes, cell cycle and cell division, then translation, transcription, replication, all these things are covered. Yes, but the best part is कि in past 15 years UPSC ने सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, वो भी कब, आपका ट्रेंड चेंज होने से पहले in 2008. तो क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं आते हुए देखने को मिलते हैं. यू कैन बी प्रेटी मच रिलैक्स्ड हियर. सो ये आपसे यहाँ पर पूछने वाला है. 1.7 को इसलिए हम बहुत ज्यादा वी बेसिकली डिस्कस इट फॉर 2 to 3 days. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ रहे तो हम इग्नोर करेंगे. विल बी गिविंग इट फुल रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ द यूनिट, बट आप रिलैक्स हो सकते हो. क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम यहाँ से होते हैं, एंड वी डू नॉट नो द रीजन व्हाई यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है. प्रोबेबली दे आर अवेयर कि इट इज टोटली बायोलॉजिकल. इट माइट बी अ ट्रबल फॉर अ लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स जो कि न्यूट्रल
बैकग्राउंड से आते हैं. सो हियर आपका यहां पर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है खत्म नहीं होता है, आप कह सकते हो ब्रेक लेता है फॉर सम टाइम, एंड देन आपकी की पूरी आर्कियोलॉजी शुरू होती है यूनिट 1.8a एंड यूनिट 1.8b के अंदर में. 8.8a will basically tell you about the ice ages, what are ice ages, what are the evidence of ice ages, and why do ice ages occur. क्या क्वेश्चन यहां से आते हैं? आंसर इज नो, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. आई थिंक वंस देयर वाज अ क्वेश्चन on the evidences of like glaciation during the ice ages. Second part of 1.8a is basically dating. Dating as mentioned earlier also, ये टिंडर वाली डेटिंग नहीं है, यहाँ पर सिंपली आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट टाइप की डेटिंग. Whenever there is some archaeological debate, अयोध्या, ज्ञानवापी, बाबरी, अक्सर वहां पर होता है कार्बन डेटिंग करा लो इसकी. ऑलराइट, सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेटिंग वेरियस एस्पेक्ट. इफ यू हैव गॉट सम सेरेमिक एविडेंसेस, पॉटरी एक्सेट्रा, उसको डेट करने का एक तरीका होता है. इफ यू आर गेटिंग सम स्टोन टूल्स, उसको डेट करने का कुछ और तरीका आपको देखने को मिलेगा. इफ यू आर गेटिंग लेट्स अज्यूम सम ऑर्गेनिक रिमेन्स, बोन्स, उसको डेट करने का अलग तरीका होगा. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस डेटिंग टेक्निक. बहुत ही सॉलिड सिंपल स्ट्रक्चर बनते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर आप ला सकते हो. क्वेश्चन भी आप देखोगे, अभी तो समय हमारे पास कम है, अभी हार्डली 13-15 मिनट्स बिफोर द नेक्स्ट क्लास स्टार्ट्स, सो हम बहुत डिटेल में अभी इसके ऊपर नहीं जाएंगे, पर हम बात करेंगे जब भी आएगा. यहाँ पे बहुत ही स्कोरिंग आप कर सकते हो, 2 साल में एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है आपका एटलीस्ट. 1.8b is about the entire prehistoric cultures in general. Prehistoric cultures in general. So we start from lower Paleolithic and we move towards the Iron Age. One very important thing that you have to know that पेपर 1 में जो आर्कियोलॉजी है, यहां से आपके मेटल एजेस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है. A couple of times a short note in 10 marks has been asked on the importance of Iron Age. Iron Age आया तो उससे क्या हो गया, इम्पैक्ट क्या था, रेलिवेंस क्या उसकी. अदरवाइज मेटल एज जो आपकी है ये इग्नोर रहती है. ज्यादातर क्वेश्चन बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं. Yes, this is the portion where you have to memorize certain things, but I'll make sure that it is not a burden for you. We are going to discuss a lot of mnemonics also in the class, which probably helped me, and probably you can design your own. For example, entire Mesolithic of Europe can be clubbed as at Lake MSC. At Lake MSC. This is a short mnemonic to understand the site. एक लेक के किनारे बैठ के आपने एमएससी की डिग्री को ऑक्यूपाई किया. व्हाट इज दिस? अजीलियन, टार्डोनेशियन, लार्नियन, अशूरियन, किचन मिडन, अर्टबोल, मैग्लोमेशियन, सॉवटेरिनियन, कैम्पिग्नियन, इस तरीके से. इवन जब हम 6 शेड्यूल वगैरह की बात करते हैं, यू हैव टू मेमोराइज समथिंग, ऑल्दो आपका पॉलिटी में वो कवर हो ही जाता है, बट अगर आपको याद करना है कि 6 शेड्यूल में कौन से हैं, 4 स्टेट आपको आते हुए देखने को मिलते हैं, कहां पर कौन से आर्टिकल लगते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, द शेड्यूल कास्ट, द शेड्यूल ट्राइब्स एंड द ओबीसीज, इनके लिए कई सारे आर्टिकल्स हैं. वहां पर भी हम निमोनिक्स को कुछ वहां पर बताएंगे, जिससे मेमोराइजेशन थोड़ा सा आपके लिए ईजियर हो जाए. ठीक है. आफ्टर 1.8b हम आते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी, विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंजॉयज अ लॉट. व्हाई? बिकॉज डिस्क्रिप्टिव बातें हैं, कल्चर्स को समझते हो, दुनिया भर की ट्राइब्स को आप यहां पर जानने को आपको मिलता है. इट इज सब्जेक्टिव, किसी को इजी लगता है. मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत लोग को इजी लगता है, और इंडियन एंथ्रोपोलॉजी भी, क्योंकि उसमें आप इंडियन सोसाइटी के बारे में पुरुषार्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष, ये सब पढ़ रहे हो, आप रिलेट कर पाते हो ज्यादा बेहतर तरीके से. तो सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, यहां पर आप क्या पढ़ते हो? सोशल कल्चर है तो फॉर एग्जांपल व्हाट इज सोसाइटी, हाउ सोसाइटी डेवलप्ड, ओरिजिन कैसे हुआ सोसाइटी का. अगेन देयर विल बी अ डिवाइनल थ्योरी कि भगवान ने ही सोसाइटी को बनाया हुआ है. देन व्हाट इज कल्चर, दिस इज अ वेरी सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ एंटायर एंथ्रोपोलॉजी. Everywhere you go, we'll talk about culture. Archaeology में it is prehistoric cultures, all right. Social cultural में it is about culture. India में it is Indian culture. Tribal में it is about the tribal culture. So culture is the central and the sole element of entire anthropological inquiry. ये ऐसा portion है जहाँ पर इतनी बढ़िया आपको case studies मिलेंगी, and you will get excited to know them. And आपको burden बिल्कुल भी नहीं feel होगा कि you are going to mug things up. It will be like telling the stories. ठीक है ना? One of the most interesting part of the entire syllabus. After society culture, you are going to learn about social cultural institutions. है ना? बिल्कुल. Marriage, family, kinship, religion, political organizations and economic organization.
ये आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा, बिकॉज इन जनरल टर्म्स जब आप पॉलिटी इकोनॉमी को पढ़ते हो तो वहां पर मेनलैंड कम्युनिटी की पॉलिटी और इकोनॉमी को पढ़ते हो. बट हियर इन एंथ्रोपोलॉजी वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिमिटिव इकोनॉमी, व्हाई डू थिंग्स एंड उसका रीजन और रेशनल क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट नेम्ड साहलिन्स. ही सेज kinship is to east what money is to west. एक्चुअल में थोड़ा सा यहां पर करेक्शन है, ये बोलते हैं kinship is to rest. ठीक है, तब राइम वहां पर बनती है. दुनिया के बाकी समाजों के लिए जो किनशिप या सोशल रिलेशंस की सिग्निफिकेंस है, वेस्टर्न सोसाइटीज के लिए वहां पर पैसे और मटेरियल जो नीड है उसका है. तो यहां पर आप देखोगे एक कम्युनिटी है Trobriand Islanders, which is studied by a very eminent scholar named Malinowski during the First World War. There were a lot of restrictions, but he went there, stayed there for more than 3.5 years. And he observed that these communities, these people are basically traveling to far off areas from one island to another in simple canoes which are made up of wood and clogs. And there is a danger of life. Why they are doing this? Are they exchanging certain material aspect or material goods? Answer is no. They are exchanging the cultural goods. So it is not having any economic relevance. ठीक है ना. Maximization की tendency. For example, if I have let's say 12 hours in my hand, I may think that मैं 3 घंटे अनअकैडमी को पढ़ा लेता हूँ और बाकी के 6 घंटे में किसी और इंस्टीट्यूट को पढ़ाता हूँ, फिर वहां पर मेरी जो प्रॉफिट है वो डबल हो जाएगा. ये क्या है? मैक्सिमाइजेशन की टेंडेंसी. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट मून लाइटिंग आइडिया, है ना. 2-2 कंपनी के 3-3 कंपनी के लोग वहां पर काम कर रहे होते हैं. But primitive people do not have this thing. In central India, there are tribes. One of the biggest tribe in India in terms of population, Gonds. Among Gonds, they dedicate 3 to 4 hours traditionally. Now, आज के समय में ऐसा नहीं होता है, आज एक कल्चरेशन हो चुका है. 3 to 4 hours traditionally ये लोग लगाते थे. After that, the entire time was for culture. ठीक है ना, रिश्तेदारी के लिए आपस में बात करते थे, डिस्कशन करते थे, कल्चरल लाइफ को वहां पर वेटेज दिया जा रहा होता था. तो ये चीज नहीं है प्रिमिटिव इकोनॉमी के अंदर में. कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन, डाटा बताते हैं कि 70%, 80% ऑफ इंडिविजुअल्स आर होल्डिंग आईफोन्स एंड कार्स ऑन EMIs एंड लोन्स. क्यों? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अपलिफ्ट देयर स्टेटस, कि हाँ वो एक सेव दिखेगा तो स्टेटस अपलिफ्ट हमारा हो जाएगा. ठीक है ना. तो प्रिमिटिव पीपल के बीच में ये नहीं होता है. कुछ स्कॉलर्स ने इसको रेफ्यूट किया कि नहीं, वहां पर भी इसके कुछ एविडेंसेस आपको देखने को मिलता है. तो विल डिस्कस कि ये प्रिमिटिव इकोनॉमी का नेचर क्या होता है. पॉलिटिकल जो कंट्रोल है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्वाइट डिफरेंट है सिंपल सोसाइटीज के बीच में. मैरिज, फैमिली, किनशिप, इन सबको हम डिटेल के अंदर में वहां पर पढ़ रहे होंगे. ठीक है ना. अलॉट ऑफ स्टडीज कि क्या मैरिज यूनिवर्सल है. फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर में एक सोसाइटी है ना कम्युनिटी, उनके बीच में आपको टिपिकल जो आप मैरिज को समझते हो वैसी फॉर्म नहीं देखने को मिलती. नायर्स की स्टडी मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनने में बड़ा मजा आता है नायर्स की स्टडी को. हाँ, मैट्री लोकल, मैट्रीलिनियल टाइप की सोसाइटी है. और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो वहां पर बड़ी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलती है. फैमिली, किनशिप, ये सब आप पढ़ोगे. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल इन आवर सोसाइटी इज ऑल अबाउट IPC, CRPC. ठीक है ना. कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर आपको देखने को मिलता है. सिंपल सोसाइटी में इट इज लाइक रामायण, ओथ एंड ऑर्डिल्स. ठीक है ना. कसम और क्या कहते हैं, ऑर्डिल्स को क्या बोलेंगे, परीक्षा बोलेंगे. ठीक है. जैसे सीता जी ने अग्नि परीक्षा को वहां पर दिया हुआ था. तो दे बेसिकली, फॉर एग्जांपल, कमर इज अ ट्राइब इन सेंट्रल इंडिया, स्टडीड बाय एन स्कॉलर नेम्ड SC दुबे. वो कहते हैं कि भाई आप पिग की नोज के ऊपर हाथ को रखो, you place the hand on pig's nose, hold an X and tell about the things which are being basically you are accused of. तो फॉर एग्जाम्पल आपके ऊपर चोरी का आरोप लगा है, तो आप उसको बताओ कि आर यू बेसिकली इन्वॉल्व इन दैट और आर यू कंप्लीटली इनोसेंट. तो लोग उसको मान लेते हैं. इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, गिव हिम सर्टेन टास्क विच इज डेंजरस, टू वॉक ऑन चारकोल मे बी. ठीक है. टू प्लेस अ हॉट आयरन एंड टच इट विद द टंग. If the person is not getting fainted, probably he is telling lie. Why they are doing all these? Because they have a belief in supernatural justice. कि हमसे तो झूठ बोल लोगे, लेकिन ऊपर वाले से क्या बोलोगे. तो supernatural justice का आइडिया बहुत ही ज्यादा इनके बीच में कॉमन आपको देखने को मिलता है. So lot of case studies you will be discussing here. So after this we can come to the next area, that is paper 2. Paper 2 को आज हम सिर्फ उसको एक ओवरव्यू लेंगे, ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. इन द नेक्स्ट ओरिएंटेशन नोट मेकिंग और बाकी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज पीपल आर स्टैंडिंग. अगली क्लासेस भी वहाँ पर शुरू होने वाली है. तो हम 5 से 7 मिनट के अंदर में पेपर 2 का एक ओवरव्यू यहाँ पर ले लेते हैं. पेपर 2 भी आपका 250 मार्क्स का है. एक ही दिन आप दोनों पेपर को देते हो. पेपर 1 इन द फर्स्ट शिफ्ट, पेपर 2 आपका सेकंड शिफ्ट के अंदर में होता है. पेपर 2 स्टार्ट्स विथ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड इट इज बेसिकली इंडियन आर्कियोलॉजी. द यूनिट 1.1 to 1.3.
In unit 1.1, we start from lower Paleolithic of India and we move towards the Iron Age and even the Mahajanpadas period pottery like PGW and NBPW potteries, NBPW cultures, Chalcolithic period, Mesolithic, and all these things. Iron is They started from iron. We'll discuss about that because there are multiple theories and new researchers जिसके लाइट में नई बातें वहां पर की जानी है. Is there anything like Aryan migration? क्या आर्यन इन्वेजन सही था? तो राखी गढ़ी के एविडेंसेस हैं, सिनोली के एविडेंसेस हैं, लॉट ऑफ रिसर्चेस हैज बीन डन इन पास्ट एटलीस्ट 11 ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 2011. ठीक है ना, उन सारी रिसर्चेस को हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे. प्रिसाइसली अगर आप देखो आर्यन का इन्वेजन का जो टाइम पीरियड है वही आपके अर्ली जो वैदिक पीरियड है उसके साथ में कन्फर. यस बिल्कुल, पेस्टोरलिस्ट जो कम्युनिटीज थी स्टेप रीजन के वो यहाँ पर बताई जाती है. तो उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन होगा. इज इट ट्रू और नॉट, एविडेंसेस क्या है उसके बारे में. आयरन एज के बारे में भी हम यहाँ पर आप कल्चर्स को डिटेल में पढ़ोगे और आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा कि व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड 10,000 years फ्रॉम नाउ इन द रीजन ऑफ कश्मीर, व्हाट पीपल वर डूइंग इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, व्हाट वाज हैपनिंग इन साउथ इंडिया, व्हाट वाज हैपनिंग इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे और आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आउट करेगी कि इंडिया में क्या कुछ हो रहा होता था. इंडिया का कल्चर थोड़ा सा डीले क्यों दिखाई देता है, इतने ज़्यादा एविडेंसेस हमारे पास क्यों नहीं जितने ग्लोबली दिखाई देते हैं. 1.2 आपकी जो है ये एथनो आर्कियोलॉजी के ऊपर है. दिस इज अ कंसेप्ट बेस्ड टर्मिनोलॉजी, तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इस पे समय लग जाएगा. 1.3 अगेन पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट से मिले हुए हैं, जैसे आप अभी नर्मदा मैन की बात कर रहे थे. तो अपार्ट फ्रॉम नर्मदा मैन यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड अबाउट शिवापिथकस एंड रामापिथकस. इन फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं और इन्हीं तीनों को पढ़ के यहाँ से हर साल लगभग एक क्वेश्चन आपका आ रहा होता है. आप देखोगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये पूरा एंथ्रोपोलॉजी का पीवाईक्यू है. पीवाईक्यू को समझ लिया तो आधी एंथ्रो यहाँ पर हमारी कवर हो गई. पेपर टू ट्राइबल नहीं, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी. सॉरी ये आर्कियोलॉजी के वाले सेक्शन में होगा, है तो पेपर 2 में बट आर्कियोलॉजी में होगा. 1.2 यस. सो शिवालिक डिपॉजिट का सिग्निफिकेंस सिर्फ एक बार आया. नर्मदा मैन के ऊपर क्वेश्चन 4 बार पूछ चुका है आपका पिछले 11 सालों में. शिवापिथकस के ऊपर क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है. रामापिथकस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है आपका लगभग 4 बार. यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ अराउंड 3.5 sheet, 7 pages. Beyond that 7 pages, UPSC is not going to ask anything. वो 7 पेज हो गए, आप ऑलमोस्ट 10 to 15 मार्क्स गारंटी कर सकते हो अपने. और ये हमारी स्मार्ट वर्क अप्रोच के अंदर में आता है कि हाउ टू कंसोलिडेट दोज 245 to 275 मार्क्स दैट आर ऑन द प्लेटर सर्व फॉर यू, कि ये तो हमारे हाथ में है ही है. इसके ऊपर इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है, यहाँ तक आपका स्मार्ट अप्रोच आपको दिला सकती है. उसके ऊपर आप कितनी नॉवेल्टी करते हो, प्रेजेंटेशन कैसा, आपका आंसर राइटिंग स्किल्स कैसी है, they will take you further. For example, even all India rank 3 will get around 270 to 80 marks in anthropology, and a person who is not basically in top 100 rank also, he can get beyond 335. There was a candidate named Lakshmi Nagappan 4-5 years from now. She scored 401 or 402 marks in the entire GS. I mean GS1, GS2, GS3, GS4. 1000 में से 401 आए उनके, 40% आए. एंथ्रोपोलॉजी में शी अचीव द हाईएस्ट एवर मार्क्स 362. मैथ्स जैसे ऑप्शनल जहां पर आपका ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी होती है वो भी एक बार देख के शर्मा जाते हैं कि इतने मार्क्स आ रहे हैं थोड़े से ह्यूमैनिटीज बेस्ड सब्जेक्ट में. ऑल्दो एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट एंटायरली ह्यूमैनिटीज, हम कहते हैं कि इट इज मोस्ट ह्यूमनिस्टिक ऑफ द साइंसेज एंड मोस्ट साइंटिफिक ऑफ द ह्यूमैनिटीज. तो दोनों तरफ है एंथ्रोपोलॉजी और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आपके यहाँ पर आ रहे होते हैं. तो ये आपका 1.2 1.3 है एथनो आर्कियोलॉजी एंड पेलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मिले. Further we have something, I think, Indian and tribal part. Indian part is, I think, the most important part for you all. Why? Because number of days जो ये लेता है, they are the minimum. But इसका जो weightage आपको देखने को मिलता है या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, one of the highest है. मैंने यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के अंदर में एक पाई चार्ट भी शायद लगाया हुआ है. ये तो एंथ्रोपोलॉजी का सक्सेस रेट है. Yes, 10 years एवरेज अगर आप देखते हो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी इन टर्म्स ऑफ यूनिट एंड नंबर ऑफ डेज वी टेक, इट इज वेरी स्मॉल, बट क्वेश्चन इसके भर भर के यहाँ पर आ रहे हैं. वन ऑफ द लार्जेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है. व्हाट यू लर्न बेसिकली इन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, द इंडियन सोशल सिस्टम, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, व्हाट इज धर्म, व्हाट इज अर्थ, व्हाट इज काम, व्हाट इज मोक्ष, पुरुषार्थ क्या है, वर्णाश्रम क्या आपको देखने को मिलता है. इंडिया के विलेज और विलेज स्टडीज के बारे में आप यहाँ पर पढ़ रहे होते हो. And we also talk about contribution of individual scholars. Each year there will be one question from the contribution. It is मतलब confirmed, वो कहीं भी नहीं जाने वाला है. तो आपको स्कॉलर्स पढ़ाए जाएंगे, उनके ऊपर हैंडआउट्स दिए जाते हैं.
एटलीस्ट 3 times और 4 times इन पास्ट 15 years एक ही स्कॉलर के ऊपर क्वेश्चन आया, दैट इज S.C. रॉय, हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन एथनोग्राफी, नॉट एंथ्रोपोलॉजी. कई बार कई नोट्स में एंथ्रोपोलॉजी लिखा होता है, उसमें कभी भी आप वहाँ पर मत मानिएगा, इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन एथनोग्राफी. सो दीज आर द पोर्शन जो हम इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं. नेक्स्ट ओरिएंटेशन, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर में डिटेल इसका ब्रेक थ्रू प्लस अलग अलग सेक्शंस में जो हमारी नोट मेकिंग का एक तरीका है वो बात करेंगे. आखिरी सेक्शन पे आ जाता है एंथ्रोपोलॉजी का 6th एंड द लास्ट सेक्शन, वेयर वी डिस्कस अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया. What we are going to discuss about the tribal communities, who are the tribals, how they differ from the mainland population. If there is a term like tribe, how does it differ from the term scheduled tribe? And if there is a term like scheduled tribe, how it does differ from the term particularly vulnerable tribal group? Any idea? Anyone? किसी को idea है? What we understand, it's like scheduled tribe is they are more like backward compared to the other tribes that are in India. All right, so there are a plethora of tribes in India with varying culture, with varying languages that they speak. Now, it has been found post-independence that there are certain groups which are more marginalized, जिनकी problems काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलती हैं. तो हमने क्या किया, उनको कुछ administrative privileges वहाँ पर दी. तो ट्राइब जो है एक कल्चरल कनोटेशन के अंदर में ये वर्ड यूज होता है, जबकि जो शेड्यूल ट्राइब है ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिको लीगल सिनेरियो में इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है ना. अंडर आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो क्या करेगा, नोटिफाई करेगा कि ये सर्टेन ट्राइब या ये ग्रुप या सेक्शन विद इन द कम्युनिटी इज डीम्ड एज द शेड्यूल ट्राइब. ठीक है ना, वो वहां पर कहेगा. तो ये एक पॉलिटिको लीगल टर्म है. व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिमिटिवली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इनको पहले पीटीजी कहा जाता था शुरुआत में. हाँ, तो पीटीजी कहा जाता था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, अभी इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है फ्रॉम द ईयर 2006 व्हेन इट वाज रीनेम्ड. ये क्या है बेसिकली, These are the groups जो कि सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, इवन अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जिनके अंदर में सबसे ज्यादा सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वीक देखने को मिलते हैं, उनको हमने इस ग्रुप में डाला. शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टार्टिंग है डेजिग्नेशन नॉमिनेशन, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही शुरू हो गया था 1950s, बट आफ्टर 20 years इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय मल्टीपल रिपोर्ट्स दैट जो हमारा पर्पस था वो सर्व नहीं हो पा रहा है. बहुत सारी ट्राइब्स अभी भी बैकवर्डनेस को सफर कर रही हैं यहाँ पर. तो देयर वाज अ कमीशन इन लेट 1960s व्हिच वाज कॉल्ड एज देवर कमीशन. देवर कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज, सर्टेन ग्रुप्स, इनके बीच में डीपॉपुलेशन देखने को मिल रहा है. कुछ कम्युनिटीज हैं जिन्होंने रिजर्वेशन का फायदा उठाया, which were benefited from all the aids that we gave post independence, and these tribals are basically having an increased number. For example Gonds, for example Santhals, for example Bhils. But there are also certain communities जिनका नंबर या तो stagnant है या तो डिक्लाइन हो रहा है. कौन सी कम्युनिटीज हैं ऐसे? टोडाज, येरकुला, Yanadis, a lot of communities in the southern part of India, and most of the communities in the Andaman and Nicobar. Yes, Jarvas, Onges, Shompen. There are total of 6 tribal groups in Andaman and Nicobar. Out of these 6, यहाँ पर जो 5 ग्रुप है वो आपके PVTG के अंदर में या PTG के अंदर में आते हैं. तो इनके लिए एक अलग से कैटेगरी बनाई गई. 2011 का सेंसस कहता है कि भारत में 715 से भी ज्यादा शेड्यूल ट्राइब आपको देखने को मिलती हैं, जो भारत का 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को कवर अप करती हैं. ठीक है. एंड पीटीजीज की बात करें तो आउट ऑफ 715 देयर आर 75 ग्रुप्स जिनको अभी तक हमने पीटीजी के ग्रुप में यहां पर रखा हुआ है. इनके लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल प्रिविलेजेस यहां पर देखने को मिलती हैं. तो दिस इज द पार्ट, इनिशियल पार्ट ऑफ ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी. लेटर वी डिस्कस द लिंग्विस्टिक एंड द रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन ट्राइब्स, जो कि आप नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हो. हर्बर्ट रिस्ले का क्लासिफिकेशन है, गैरिसन का क्लासिफिकेशन है. ये आपका इवन हेल्प करेगा, आपको जीएस के साथ में ओवरलैप दिलाएगा. नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम व्हेन वी टॉक अबाउट कि ये ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स है, ट्राइबल डिसएडवांटेज है, तो व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स. वी विल डिस्कस इन डिटेल दोस प्रॉब्लम्स, द केस स्टडीज बेसिकली कि क्या क्या यहाँ पर प्रॉब्लम्स उनकी है और हम उनको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं. एंथ्रोपोलॉजी हाउ इट इज सिग्निफिकेंट. तो दिस इज द एंटायर डिकोडेशन ऑफ द सिलेबस इन ब्रीफ. नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसके अंदर में कई सारे जो आपके क्वेश्चन है बेसिकली आप पूछ सकते हो, like books and resources. Do we need any other book and resources apart from the material that you are going to get, apart from the dictation that you are going to get? How to make notes and any other question that turns up in your head, you can basically ask those questions. ठीक है, तो we'll be winding up here. Thank you very much. और किसी का भी कोई डाउट है आउटसाइड दी क्लासरूम आप उसको वहाँ पर पूछ सकते हो. अदरवाइज मैंने ईमेल आईडी भी दी हुई है, यू कैन डायरेक्टली गेट इन कॉन्टैक्ट विथ मी. ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू सो मच.